Center told the Supreme Court that the grace marks for 1,563 students who appeared for NEET 2024 will be cancelled and they will have the option to reappear for the exam. The court said that a re-examination will be conducted for the 1,563 students. The National Testing Agency said that a retest is likely to be held on the June 23rd and results for the re-exam should be out before June 30th. The NEET exam was held on May 5th and the results were announced on June 4th ahead of its anticipated date of June 14th. Suspicion arose when the results showed that 67 individuals achieved a perfect score of 720 marks. Interestingly, all these 6 students came from the same or nearby testing center. My colleague Ashish with us on the broadcast to give us more details on this. Ashish, if you could take our viewers through the latest developments that are coming in as far as the Supreme Court hearing is concerned. Devika, there were 3 petitions which were listed for hearing today itself against the irregularities in the NEET exam which is held this year. While hearing, the advocate who represent NTA informed Supreme Court that they had constituted a committee regarding the grievances which was raised by the students, and the committee found it that the 1,563 students which got the grace mark, their grace mark has been set aside by them, and now they have 2 options. Either they can continue without a grace mark, or second option is that they can appear the re-exam of the NEET. The NTA Council further informed Supreme Court that today itself they are going to issue a notification regarding the re-exam of NEET regarding these 1,563 students who got grace mark. The third important point, he informed the Supreme Court that exam would be held before 30th of June, and exam will be held on 23rd of June, and result will be declared on before 30th of June. The fourth important point is that Supreme Court had asked NTA to file response on the 2 other petitions, and Supreme July for next. It remains to be seen that what response that NTA is going to file before the top court of the country. Yes, the larger issue is still open before the Supreme Court. All right, Ashish, with that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. In fact, joining us at this point of time is my colleague Arzu Seth. She's live with us from Jantar Mantar. Arzu, if you could hear us. So I'm being told that you're also you're there along with some students, is what we're learning at this point of time. Could you perhaps ask them their sentiments at this point of time, especially with the Supreme Court hearing that's underway? Well, yes, Asavri, we are right now at the Jantar Mantar where students have gathered here to hold the protest against the irregularities that was found in the NEET exam. But now the Supreme Court has given a decision that, the grace marks that was given will be cancelled. How do these students see this decision? Let me go across them. कैसे देखते हैं Supreme Court के इस फैसले को? मैम, ये जो फैसला है ये इतना ठीक नहीं है, क्योंकि मैम ऑलरेडी एनटीए कल प्रूव हो गया था, क्योंकि झज्जर के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, पर यहाँ पर कोई भी टाइम लॉस नहीं हुआ, यानी कि एनटीए ऑलरेडी रॉन्ग प्रूव हो चुकी है। तो उस चीज़ को रॉन्ग प्रूव हो चुकी है, तो अब हमारे फेवर में बस थोड़ा सा डिसीजन दिया गया है कि 1563 बच्चों को ही री एग्ज़ाम कराया जाएगा। बट मैम, ये मेन इशू तो हमारा पेपर लीक है, जिसकी वजह से इतना रैंक इन्फ्लेशन है, उसको ना सरकार देख रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट देख रहा, ना ही लोग इतना ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पर। सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स वाला जो डिसीजन है एनटीए उसे आगे भेज देता है ताकि लीक पेपर से बच जाए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? ग्रेस एग्जाम जिनको दिए गए थे वो कैंसिल कर दिए गए। मैम, ग्रेस एग्जाम तो एक मुद्दा था, बस उन्होंने 1563 नंबर हमें दिए इसलिए था ताकि हम इसी में घूमते रह जाएं, पेपर लीक का पूरा मुद्दा दब जाए। पटना पुलिस ने अपनी एफआईआर, डिटेल एफआईआर लिखी है, जिसको आप निकाल सकते हो, मैं निकाल सकता हूँ, सब निकाल सकते हैं। तो क्या पटना पुलिस झूठ बोली है? अगर वो झूठ बोली है तो वो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं और उनकी बेल क्यों नहीं मिल रही है? मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जैसे कल मीडिया झज्जर वो प्रिंसिपल पे पहुंची थी, आप पटना पुलिस के पास जाइए, उनसे पूरी डिटेल लीजिए, क्योंकि आप हमको नहीं देंगे, आपको जरूर देंगे वो सारी जानकारी। तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार पटना पुलिस पे जाइए, पूछिए उनसे सारा माजरा क्या था क्या है। अगर ये सच है, पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए डिनाई क्यों कर रहा है?
हमें पूरी सीबीआई की जांच चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि 13 लोग अरेस्ट थे तो उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है, अगर वो बेकसूर हैं तो। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर करेगा हम उस पर अमल करेंगे। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो पेपर लीक वाले मामले को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप क्यों इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ? जब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उसमें आपने एक बार भी पेपर लीक पे बात नहीं करी, मतलब इस चीज़ को बिल्कुल आप देख नहीं रहे थे, जबकि आपके नीचे कमेंट बहुत बार चल रहा था कि पेपर लीक हुआ है, आप उस पर बिल्कुल ही एक्शन नहीं ले रहे थे, आपका कोई मतलब आंसर ही नहीं आ रहा था। और ये मामला बच्चों का है और उनसे क्वेश्चन कर रहा था मीडिया वाले लोग, क्योंकि उनको क्या पता हम लोगों का दर्द कि हम लोग दिन रात कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। आप लोग जंतर मंतर फिर से पहुंचे हुए हैं, कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आज भी पहुंचे हुए हैं, तो आज क्या कुछ डिमांड करें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है 1563 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस एग्जाम मार्क्स मिले थे अब उनका री टेस्ट होगा। मैम, मैं इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रही हूँ। जो भी डिसीजन होगा, रीनीट हो या कुछ और डिसीजन हो, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा। पर जो अभी मेरी मांग है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट अभी 8 जुलाई तक, जब तक हमारी डेट है, तब तक थॉरो इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन on the paper leak issue and on all the irregularities caused. Okay, so what are you demanding now? The Supreme Court has said that the grace marks that were given to the student will be cancelled. So now what is your demand? Ma'am, the demand is the same, that the investigation inquiry should be there and they should check, because this much rank inflation in 1 year, 40,000 jump increase in the rank is not possible within the 1 year, and it will always indicate that the paper has been leaked at a very mass level, and we just want the Supreme Court to address this issue. We want nothing more than that. Grace marks issue has been resolved by the Supreme Court, congratulations to them, but the main problem is not this. The main problem is the paper leak, which they are not addressing, and that is our issue right now. That's why we are protesting at Jantar Mantar right now. Okay, so there you heard us, Avri. The students here are saying that, they congratulate the Supreme Court, the decision that have been taken, but their main issue is not the grace marks that were given to the student, but the paper leak that has happened. So they want the Supreme Court to address this issue. Yes. Right, absolutely, Arju. So, of course, we've heard the students who are there at Jantar Mantar at this point of time. They're protesting. They've, of course, said that they want a detailed probe on the paper leak issue. Is what I mean. Almost all of them have spoken on that front. They, of course, it's very disheartening to see situations like these. Students who worked so hard, and now, as you heard, they feel like they have absolutely no options left. They feel like their thought process at this point of time is what next. So, of course, we've heard the sentiments of the students. In fact, Education Minister Dharmendra Pradhan has spoken about the NEET controversy and the Supreme Court hearing. Let's take a listen to that. अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन। All right, so there you heard it. Meanwhile, joining us at this point of time is my colleague Prashant Yadav. He is joining us live from Jaipur. And Prashant, if you could hear me, and I'm in fact being told that you're with some students. So if you could also speak to them and ask them what are their sentiments at this point of time, especially with the Supreme Court hearing that's underway. The Supreme Court, of course, there being this conversation that re-exams will be held on 20, there's going to be exams that are going to be re-held. The results for that are going to come out on 30th June. Give our viewers an understanding on that front, if you could speak to the students.
जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो कहे कि आज दूसरी याचिका पर सुनवाई की गई है, मगर कहे कि बड़ा फैसला उसके साथ आया है। जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी तो किसी प्रकार से जो है काउंसलिंग की रोक लगाने की बच्चों ने उम्मीद लगाई थी, मगर इस तरीके की इस बार भी जो है कोई भी सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर अभी तक रोक नहीं लगाई है, मगर एक बड़ा फैसला दिया गया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, यानी नंबर वो कि 563 वो बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो कितना इससे फर्क पड़ेगा, क्या कुछ इसके नंबर्स पर फर्क पड़ेगा, जो ये स्कोर था वो क्या कम होगा, या जो बच्चे इस बार अच्छा स्कोर किए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पीछे रह गए थे उन पर कुछ असर पड़ेगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये अब फैसला दिया गया है क्या कुछ इसकी गणित है, कितना कुछ इस पे जो है फायदा होगा या फिर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन जो मामला था तो उसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण तो बच्चों को ये आया कि अब भाई ऐसे करके ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है कि इतने ही बच्चों को एग्ज़ाम देना है और इसके बाद इतनी तारीख को एक नया रिज़ल्ट आएगा और फिर ऐसे काउंसलिंग होगी। तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। सबसे बड़ा कोचिंग स्टूडेंट के लिए अभी जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि करें तो करें क्या, इतना ऊपर रिज़ल्ट गया, कैसे करना है, अभी दोबारा रीनीट होगा क्या। तो मेरी तो इसमें एक छोटी सी एक सुझाव भी है और एक डिमांड भी है कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन थोड़ा सा उसको जल्दी कर दें, जिससे कि बच्चे, अगर बच्चों को पढ़ना है तो अपनी पढ़ाई शुरू करें और काउंसलिंग होनी है तो काउंसलिंग भी करें। एक पॉइंट इसमें ये आया कि ये हुआ है तो ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, तो अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जितना मार्केट में या न्यूज़ में हम देख पा रहे हैं उससे हम इतना तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ तो इसमें है, और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है। हम कोई जवाब सही से नहीं दे पा रहे हैं, कोई चीज़ सही से नहीं कर पा रहे हैं। हम एक एजेंसी हैं, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं और उसके बावजूद हम अगर जवाब बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं तो मेरा इसमें 2-3 चीज़ें रहेंगी। एक तो NTA अपने एंड से एकदम क्लियर चीज़ें करने का एक रास्ता तैयार करे कि भाई कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर सही आए। इतना हंगामा होने के बाद आंसर आता है। दूसरा, विचाराधीन मामला है ही, तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो करें वो सबको मानना ही होगा और उसको मान ही रहे हैं। तो विद्यार्थी जो परेशान हैं उनके हित में जैसा भी निर्णय आए वो सबको मान्य रहेगा। प्रद्युमन जी, एक बड़ा जो आरोप लग रहा था वो ये भी था कि रजिस्ट्रेशन कहे कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बंद कर दिया गया था, मगर एक दिन के लिए उस प्रोसेस को वापस, उस रजिस्ट्रेशन को खोला गया और उनमें से वही बच्चे, खास तौर से उनका रजिस्ट्रेशन उस सेम डे बताया जा रहा है जो बच्चे टॉप किए हैं। नहीं, इसमें खामियां तो हैं, ये तो स्पष्ट है कि इसमें खामियां हैं, इसको तो कोई नहीं मना कर सकता कि खामी नहीं है। और ये हर एक व्यक्ति के समझ में आ जाएगा भी रिजल्ट का इतना ऊपर जाना। पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़े कि इसी साल पढ़ने वाले बच्चे हुए, तो ये खामियां तो सबको स्पष्ट दिख रही हैं। तो इस पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर विचार करें और माननीय उच्चतम न्यायालय में है तो मेरा तो यही है कि कोर्ट जो फैसला करेगा बहुत अच्छा करेगा और बच्चों को और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के अगर ये चीज़ करी जाए और थोड़ी जल्दी करी जाए, क्योंकि इतने बच्चे परेशान हैं इस समय। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत क्या है, भारतीय बच्चे ही तो भारत है भाई। भारत किसी ज़मीन के टुकड़े का नाम तो है नहीं, ये जीते जागते भारत है। अब अगर इनका विकास सही से नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे काम चले? इनके लिए एक कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है तो कैसे काम चले? Okay, so of course we've of course heard there are more reactions coming in at this point of time. My colleague Ravi Kumar joins us live from Lucknow. He is with NEET students. Ravi, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, if you could ask the students who are there with you, what are their reactions to these to the Supreme Court hearing that's taking place? What are their sentiments?
जी बिल्कुल, तमाम सारे स्टूडेंट हैं जो या तो जिन्होंने परीक्षा दी है या वो हैं जो तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट के मन में सवाल चल रहे हैं और वो सवाल क्या उनसे पूछेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरी परीक्षा में धांधली की जो बात सामने आई है, अब जो बच्चे हैं जिनको, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दोबारा से उनकी परीक्षा कराने की बात सामने आई, क्या लगता है कहाँ से गड़बड़ी हुई है? सर, जिस बेसिस पे ये फिर से परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं, ग्रेस मार्क की बात हुई इसमें। ग्रेस मार्क का कोई प्री इन्फॉर्मेशन कहीं था ही नहीं। ग्रेस मार्क्स उन्होंने ऑनलाइन क्लैट के जो नियम थे उसको फॉलो करके नीट एग्ज़ाम में उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब वो नंबर जो बता रहे हैं कि ग्रेस मार्क इतने स्टूडेंट को दिया है, किस बेसिस पे दिया है, उन्होंने क्लेरिफिकेशन में कहा है कि मैं कैमरे से देख रहा था, हम लोग भी परीक्षा दिए हैं, ऐसा कहीं कोई कैमरा नहीं था कि हमारी OMR रिकॉर्ड हो रही हो कि हम कितनी तेज़ी से पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इतना जूमिंग पावर नहीं रहता, इतना जूमिंग पावर कैमरे में जो लगा होता है क्लासरूम में कि जिसमें आप जूम करके देख सकते हैं कि बच्चा किस मिनट मतलब कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन कर ले रहा है। तो आप किस बेस पे ग्रेस मार्क दे दिए? कैसे आपको पता चला कि इतनी जल्दी बच्चे ने इतना पेपर सॉल्व कर लिया है? ठीक है। और दूसरा, जब रिजल्ट हमारा 14 जून को आने वाला था, 4 जून को रिजल्ट क्यों आया? ठीक है, उसी दिन जिस दिन इलेक्शन जो है वोट वगैरह से पता चल रहा था, ठीक है, रिजल्ट इलेक्शन के आ रहे थे, उस दिन हमारा रिजल्ट हम लोग को पता ही नहीं था। पहले देना चाहिए NTA को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि इतनी तारीख को हमारा आएगा रिजल्ट या कुछ भी, कोई भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ भी ऐसा नहीं था इनके। ठीक है सर, ये जो हो रहा है इसकी सबसे पहले CBI जांच होनी चाहिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी तो हम लोग ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। प्रोटेस्ट करने जाएंगे उसका भी कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही, कहीं नहीं सुनी जा रही है हमारी आवाज़। सुप्रीम कोर्ट भी हमारी केसेस को जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देख रहा है, उसको सबसे पहले काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए। ये 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला था, NTA ने उनके ग्रेस मार्क को कैंसिल कर दिया, उनकी परीक्षा दोबारा से कराने की बात आ रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? कैसे जान सकते हैं किस बेसिस पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? कहीं इन्फॉर्मेशन थी इसकी? आपने कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर अब हमें कैसे पता कि सिर्फ 1563 बच्चों को ही नंबर दिए गए, उससे ज़्यादा नहीं दिए गए? तो बताए भी नहीं गए थे। पहले दिन पे जब ये बातें शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद में ये शुरू हुआ कि नहीं हमने दिया है, लेकिन तो वो कोई क्लैट का जो रूल था उसके हिसाब से हमने दिया है। फिर उसके बाद में बताया कि मैंने कैमरे से देखा है कि ऐसे ऐसे कर रहा होगा तो हमने, और हाँ सबसे बड़ी वेरिएशन नंबर का उन्होंने कहा कि -0 से -20 से 720 हो जाए, जिसके -20 मार्क्स आ रहे हैं उसको 720 मार्क्स तक वो ग्रेस मार्क्स में दे सकते हैं। टाइम लेट हो, भले उसको कुछ ना आता हो, लेकिन वो -20 से 720 तक पहुंच सकता है। और उन्होंने OMR देखिए कि कितनी जल्दी लड़का सॉल्व कर रहा है, मतलब इसका कोई तर्क है ही नहीं। हम लोग भी पेपर देख सकते हैं कि OMR इतनी जल्दी उसने भर दिया या इतना क्वेश्चन इतनी देर में कर लिया। क्या चाहिए इस बार? NTA में बहुत लूप्स रहे, मतलब उनकी मैनेजमेंट में, उनको अपनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, या तो गवर्नमेंट देखे इसकी एजेंसी पे कुछ करे। जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है उनके भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, हाँ सर ऐसा तो हो रहा है। मैं सर सबसे पहले इसकी CBI जाँच होनी चाहिए और तुरंत काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए जब तक जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। 15 से 63 बच्चों का सिर्फ मामला है तो सर 40 से 45 नंबर कैसे जो है उछाल मार सकती है? हम लोग ये मान के चलते हैं कि 10 3 नंबर 4 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। प्लस माइनस मान के चलते हैं। पिछली बार रैंक 610 के आसपास थी, हम मान रहे थे कि 25 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पता था पेपर जब तो वो नॉर्मल ऐसा जैसे ग्रेस मार्क्स की बात आई तो ग्रेस मार्क्स की तो कहीं बात ही नहीं आती। जैसे इन्होंने जो बच्चे बाहर चले गए थे सेंटर से उनको बैठा के शाम तक 6 बजे तक पेपर दिलाया था, वैसा ही उनको भी समय देते, समय के बदले नंबर देने का मतलब मैं कह रहा हूँ जितना 15 मिनट जो लॉस किया उन्होंने, क्या एक भी क्वेश्चन वो गलत ना करते? 15 मिनट में 720 कर देते। ये कैसे हो रहा है कि एज ए पेरेंट मुझे पता है कि साल भर में बच्चे को डिप्रेशन से, एक्साइटमेंट, सब चीज़ों से गुजर के तब वो जाके साल भर में पेपर देने को उसे मिलता है, और फिर भी वो कभी कभी 600 नहीं पहुँच पाता। 600 नंबर लाने में ही बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। 720 आप ऐसे फ्री में दे रहे हैं, क्या इसका क्या होना क्या चाहिए? क्या सर रीनीट होनी चाहिए एक बार, क्योंकि हमारा परीक्षा की गहन CBI जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है तो रीनीट होना चाहिए। पूरे प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है, कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच होने तक काउंसलिंग पर रोक होनी चाहिए, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन है कि रीनीट हो। इसका कंप्लीट, जैसे काउंसलिंग करा दी इन्होंने, बोला काउंसलिंग होगी, ठीक है, जो बच्चा सीट ले लेगा वो क्यों सीट छोड़ेगा? सीट को छोड़ना चाहेगा बाद में? तो हमारा मानना पहले काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। दोबारा हर चीज़ की जाँच होनी चाहिए। अगर जाँच में कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है, सबका सारे बच्चों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। CBI को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस चीज़ पे और
रीनीट होना चाहिए, मतलब अगर बिल्कुल सर रिजल्ट रद्द करके रीनीट होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच तक काउंसलिंग रीनीट कराएं पहले, और फिर ये ग्रेस मार्किंग जो हटाए थे, और ये भी थोड़ी पता कि 1563 लोग को ही ग्रेस मार्क मिला था, और भी लोग हो सकते हैं। अब ये इतने डिक्लेयर किए हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। सबसे बड़ा इशू है पेपर लीक हुआ है सर। FIR पेपर लीक की FIR हरियाणा में यहाँ हो रही है, पटना में, और पेपर मिल रहे हैं हरियाणा में एक ही सेंटर से 720 में से 700। इतना टैलेंट नहीं होता है सर। हम लोग भी पेपर, एक सेंटर में 2 लोगों का 720 आया। यूपी में भी एक ही सेंटर पे सेम क्लास में बैठे हुए बच्चों का, एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे का 720 आया। इतना टैलेंट आ गया। और यहाँ हरियाणा में 6 बच्चों का लगातार 720, 719, 718 नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है, और इसका CBI जांच होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होना चाहिए, तभी तो हमें विश्वास होगा कि हाँ रीनीट बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से 720 इतने बच्चे ला रहे हैं तो फिर से उतना मार्क्स को अटेन ही कर लेंगे, क्योंकि उतने अगर टैलेंटेड हैं तो ले आएंगे, और जो टैलेंटेड हैं उनको फिर से सीट मिल जाएंगी। इसमें रीनीट ही बेस्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि कहाँ पेपर गया, किसको मिला, क्या ना। ये पहली बात तो ये FIR ही नहीं मांग रहे, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान रहे हैं? बात ये है, NTA क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आती है? क्या जुडिशरी के अंदर नहीं आती है? ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है हर चीज़, FIR वगैरह उसके कॉपी, लेकिन NTA कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। NTA चेयरमैन कह रहा है कि हमें हमारे संज्ञान में कुछ है ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ जो है सब कुछ चोर है, चोरी हुआ माल भी है, लेकिन घर वाला कह रहा है कि मेरे यहाँ चोरी नहीं हुई। पुलिस वाला फोन करके बता भी रहा है सर आपके यहाँ चोरी हुई है, मैंने माल पकड़ा, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई। इतने ईमानदार हैं, यही सब है, यही इतने ईमानदार हैं सर। मतलब हम लोग का फ्यूचर पूरा स्क्रिप्टेड हो चुका है, मेहनत से कोई लेना देना है नहीं। जिसके पास पैसा हो, अब ये तो ऐसे हो गया राजा का बेटा राजा बनेगा, जिसके पास कैपेबिलिटी है वो तो कहाँ बन पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। लास्ट ईयर जिसके 593 मार्क्स आ रहे थे उसके लगभग 33,000 के अप्रॉक्स कट ऑफ थी। इस बार जिसके 636 मार्क्स हैं उसकी 34,000 अप्रॉक्स रहे, उसके अबव रैंक है। कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। मतलब एवरेज स्टूडेंट तो बाहर ही हो जाए, जिसके पास पैसे नहीं है वो उसको प्रिपरेशन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ धनाढ़ लोग ही पेपर लीक करवा के पेपर कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इसीलिए हमारे देश का हेल्थ का बच्चा पढ़ने आता है, कहीं कोई अपनी खेती बेच के आता है, कोई कुछ करके आता है, कोई अपना सामान जो सोना चांदी सब गिरवी रख के आता है। कितने सफर करते हैं अपने सफर दबा के, अपने सपनों को दबा के, मतलब उनकी भी इच्छाएं होती हैं। हम लोग को पहले हम लोग की प्रायोरिटी देते हैं कि बेटा हमारा पढ़े, लेकिन बेटा का सारा फ्यूचर सरकार, एजेंसियाँ, सारे लोग मिलकर फ्यूचर उसका स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। मतलब उन कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उसका कोई रिजल्ट चाहेंगे वही डॉक्टर बनेगा, जो वो चाहेंगे वही बनेगा, जो वो चाहेंगे वही बनेगा। सर रीनीट होना चाहिए और काउंसलिंग को तुरंत रोकना चाहिए। हमें रीनीट चाहिए, काउंसलिंग को स्टे लगाएं प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, काउंसलिंग को जरूर स्टे लगाएं। काउंसलिंग पे अगर काउंसलिंग हो गई, कोई भी बच्चा अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा, जैसा कि हर जगह कोई भी सीट हो नहीं छोड़ना चाहेगा, तो मेरा मानना है काउंसलिंग पे स्टे लगा के जांच हो पहले, उसके बाद में इसको सर इस समय करंटली जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, तो वो भी तो क्लेम करेगा मुझे सीट मिल चुकी, मैं सीट क्यों छोड़ूं। भाई जैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि धांधली हुई, वैसे वो भी अपना अधिकार मांगेगा। तो पहली बात तो काउंसलिंग को रोक लगनी चाहिए, और जो परीक्षा है इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि अगर कहीं लूप्स हैं तो परीक्षा फिर से होनी चाहिए। सर आगे मैं यही कहना चाहूँगा, रीनीट ही इसका सबसे सही ऑप्शन होगा, और इसकी सही तरीके से जांच करें, जो कि NTA के अंडर ना हो, क्योंकि NTA ही जब जांच करेगा तो मतलब क्या बनेगा जांच का। और इसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर कमेटी बननी चाहिए, जो जिसमें कम से कम हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन पूछ रही है, हम कमेटी बनाएंगे। फोर्थ फ्लोर पे चाय पी लीजिए, चाय पिला रहे हैं वहाँ पे वो। All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.